Now student, please pay attention. The next question is question number 4. On a number line, point A, B and C are such that distance AC is equal to 10 and distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities. Now, considering all possibilities means we have to identify position of a respective point on that line structure, and according to that, the part in terms of answer to be get solved. Let us say one by one I am going to solve the answer over here. So the first part is answer. They have given us distance AC, that is equal to 10, and distance CB is equal to 8. Now, we don't know exactly what is the position of point C over here, because in AC they have given point C and distance CB they have given point C. Whether C is in between A or B, or whether it is outside between A and B. Now let us say I am going to draw first a rough type of a diagram so that we can easily understand the outlet part. This is the diagram of A, next point B and then C. So one by one, distance AC is 10, means we know that this distance AC is 10 over here. Next, distance CB is 8, C to B, this distance is 8. And now our target, find the distance AB. This is the first type of possibility, means B is in between A and C. So your first part I am going to mention, that is nothing but A dash B dash C, means point B is in between A and C. If such a condition is over there, then we have to find distance AB. Naturally from this diagram we can say that distance AB plus distance BC is equal to distance AC. Now distance AB, that is unknown for us, plus distance BC, that is 8, is equal to distance AC, that is 10 over here. Simply we can have distance AB over here is equal to 10, shifting plus 8 to that side, 10 minus 8 means 2 units. And in this way, our first possible answer or first possibility is over here. I am going to call it as first answer. Now, in first case, we have considered that B is in between A and C. But it may be possible that instead of this point C, it is over here. It may be in between A and B. What does it mean? Let me clear in front of a diagram. In second case, our diagram structure, that is, let us say point A is over here, point B is over here, but now point C is over here. Means again, distance A to C, this is 10 over here, A to C is 10 over here, and next distance CB or BC is 8 over here. Now again we have to find out the distance AB. अभी भी हमें distance AB ही ढूंढना है. So solving that part in terms of diagram point of view, here distance AC plus CB is equal to distance AB. Therefore distance AB is equal to distance AC plus CB, distance AC plus distance CB, and that is nothing but 10 plus 8, 10 plus 8, and then become 18 units. That is the answer of distance AB. And this is the second possibility. So I am going to call this as equation number 2. And in this way, we have cross-checked the possible possibility. Moving to the next question, and that is nothing but question number 5. Now what is the question? Student, समझ लो कि क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है तो डायग्राम व्यू समझ में आ जाता है, और डायग्राम व्यू समझ में आ जाता है या रफ डायग्राम हम बना लेते तो आंसर लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, यानी एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है. पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द डिस्टेंस एक्स जेड.
जैसे हमने प्रीवियसली न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, यहाँ पे भी आपके लिए पॉसिबिलिटी बन जाएगी जो इन्होंने दिया नहीं है। बच्चे एक ही आंसर सॉल्व करके निकल जाते हैं एंड दे लूज द मार्क। लेट अस सी द टाइप एंड आंसर। सो वन बाय वन, डिस्टेंस xy they have given 17, distance xy is 17, distance yz is 8, distance yz is equal to 8 and points xyz are collinear। एक एक करके हम डायग्राम व्यू में समझते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लेट अस से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। Distance xy and z, all 3 points are collinear. In first case, I am going to consider xy. This distance is over here. X to y, this distance is given by them as 17. And yz, समझ लेते हैं कि yz उसके साथ कनेक्टेड ही है। अब ये कैसे गेस किया जाता है, जैसे y ये पॉइंट दोनों जगह है, नेचुरली वो मेन डायग्राम का टर्निंग पॉइंट रहेगा। एंड हियर yz इज 8। नाउ एज पर देयर क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस xz, यानी हमें ढूंढना है डिस्टेंस xz, यानी हमारे पहले पॉसिबिलिटी के हिसाब से y इज इन बिटवीन x एंड z और इट इज अ कंडीशन ऑफ अ बिटवीननेस, तो हम यहाँ पे लिखते देयरफॉर x डैश y डैश z, इट इंडिकेट दैट y इज इन बिटवीन x एंड z। सॉल्विंग दैट पार्ट, अगर हमें ढूंढना है डिस्टेंस xz, सो डिस्टेंस xz इज इक्वल टू डिस्टेंस xy प्लस yz, डिस्टेंस xy plus distance yz is equal to 17 plus 8 and that addition 17 plus 8 25 and that become distance xz। यूनिट का पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स। and this is our first answer over here. I would call it as equation number 1. now in second part, जिस तरह इस केस में हमने लिया था y इज इन बिटवीन x एंड z, इट मे पॉसिबल दैट xy इज 17 लेकिन yz इस तरफ हो, मीन्स y टू z का डायरेक्शन इस तरफ हो, यानी z इज इन बिटवीन x एंड y। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डायग्राम ओवर हियर। स्टूडेंट रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, इससे हमें लिखने में या राइटअप करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। नाउ हियर सेकंड पॉसिबिलिटी दैट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, xy, this distance from x to y as per given 17 and now y to z, ये हमने इस तरफ ले लिया, एक बार मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y to z and yz, और डिस्टेंस yz इज 8, यानी ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है 8 जो उन्होंने दे रखा है। नाउ एज पर आवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड xz, हमें ये ढूंढना है। यहाँ पे आपका इक्वेशन राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस xz प्लस yz या zy, जो कहना है को डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस yz इज इक्वल टू डिस्टेंस xy, यानी इस केस में ये वैल्यू अलग आने वाली है। सो राइटिंग दैट पार्ट, डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस yz इज इक्वल टू डिस्टेंस xy। अब ज़रा ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यूज अल्टर होने वाले हैं। xz ये हमें पता ही नहीं है, जो हमें ढूंढना है डिस्टेंस yz इज 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस xy, ये 17 इज इक्वल टू डिस्टेंस xy, ये आ गया 17। नाउ शिफ्टिंग दिस प्लस 8 टू दैट साइड, क्योंकि हमें xz का आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखो डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 17 प्लस 8 उधर गए -8, 17 माइनस 8, सो 17 माइनस 8 दैट बिकम 9। सो डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। and in this way we have completed our part. Now moving to question number 6, and the part is sketch the proper figure and write the answer of following questions.
They have given 3 questions. Now one by one, please pay attention. Among question number 1, they have given a part, if A dash B dash C, इसका मतलब है B is in between A and C. If A dash B dash C and length of AC is 11, length of BC is 6.5, then find the length of AB. Now first of all we have to draw a diagram, and with the help of diagram हम यहाँ पे explanation करने जाएंगे. As per their first condition, A dash B dash C, so I am writing the answer. यानी पहले कहीं A है, somewhere B in between, and then C. As per their condition, length AC is 11, यानी A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो है 11 यूनिट्स. लेंथ BC is 6.5, B to C ये जो डिस्टेंस है ये है 6.5. देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी हमें ये AB ढूंढना है. दिस इज द पार्ट. एज पर डायग्राम ओनली और एज पर कंडीशन ऑफ A dash B dash C, इन्होंने बोला है B is in between A and C. Naturally, length of AB plus length of BC is equal to length of AC. So starting that part over here, as A dash B dash C, therefore length of AB plus length of BC is equal to length of AC. स्टूडेंट ये रीजन आप यहाँ पे भी डॉट डॉट करके A dash B dash C एज अ पार्ट ऑफ अ रीजन लिख सकते हो. लेंथ ऑफ AB ये तो हमें ढूंढना है, प्लस लेंथ ऑफ BC दैट इज 6.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC लेंथ इज 11. नाउ सिंप्लीफिकेशन, लेंथ ऑफ AB is equal to 11. Shifting this plus 6.5 goes to that side, it become minus 6.5, and length of AB 11, yeah, 11.0 minus 5 means 0.5, and 11, 6 plus 1 7, 11 minus 7 that is 4, and units पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ units. And in this way length AB is of 4.5 units, and in this way you can complete the part. स्टूडेंट यहाँ सब्ट्रैक्शन करते समय मैंने ओरली किया है, आप प्रैक्टिस के साथ कीजिए. 11 माइनस 6.5, अगर किसी को डाउट है तो आराम से ध्यान दो, ये भी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ. 11 मीन्स 11.0 माइनस 6.5. फर्स्ट 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए 10 माइनस 5 कैरी 1. So 11 minus 7 that become 4, and the answer become 4.5 units. In this way we have completed the first part. Similarly हम आगे का न्यूमेरिकल भी देखेंगे. Now in second numerical they have given if R dash S dash T, इसका मतलब है पॉइंट S R और T के बीच में कहीं है. If R dash S dash T and ST is 3.7, RS is equal to 2.5, then find RT. As per their condition, R dash S dash T, length ST is 3.7, यानी ये डिस्टेंस है 3.7. लेंथ RS 2.5, R to S 2.5. देन फाइंड द लेंथ RT, यानी हमें ये पूरा लेंथ ढूंढना है. देयरफॉर अगर हमें पूरा लेंथ RT ढूंढना है, सो लेंथ RT इज इक्वल टू RS प्लस ST. लेंथ RT इज इक्वल टू लेंथ RS प्लस लेंथ ST, एंड रीजन इज R dash S dash T as R dash S dash T. लेंथ RS दे दिया है 2.5, सो इट बिकम 2.5 प्लस ST इज 3.7, एंड देयर एडिशन 7 प्लस 5 12 कैरी 1 डेसिमल ले लिया. 3 प्लस 2 5 प्लस कैरी 1 6, एंड लेंथ RT इज इक्वल टू 6.2 यूनिट्स. And in this way you can solve the numerical. Student,
एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया था डेसिमल सब्ट्रैक्शन का, एक दे रखा है डेसिमल एडिशन का। यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, टेक योर ओन टाइप एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। Moving to the next question, and the part is question number 3. If x dash y dash z, यहाँ का सिंपल मतलब है y is in between x and z. If x dash y dash z and xz is equal to 3 root 7, xz दे रखा है 3 root 7, length of xy is equal to root 7, then find the length of yz. Let us say try to understand a simple line diagram, और इस लाइन डायग्राम में हम 3 पॉइंट ले रहे, x dash y dash z, यानी x, then somewhere y and then z. So x dash y dash z, these are the part. Length of xz is 3 root 7, x to z ये डिस्टेंस दे दिया गया है 3 root 7, and length xy is root 7, length xy is root 7. Then find the length of yz, यानी ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है। रफ डायग्राम में आप पॉइंट कहीं पे भी दे सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो एज एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड। लेंथ ऑफ एक्स वाई रूट 7, लेंथ ऑफ वाई जेड पता नहीं है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड 3 रूट 7। सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे ये रूट 7 उस साइड चला जाएगा और वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 3 रूट 7, और ये प्लस रूट 7 उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस रूट 7। नाउ 3 रूट 7 माइनस रूट 7 इट बिकम 2 रूट 7। आप इसे इस तरह भी आ सकते हो, जैसे जिस तरह आप करते हो 3x माइनस x 2x, उसी तरह 3 रूट 7 माइनस रूट 7 दैट बिकम 2 रूट 7। लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 2 रूट 7 यूनिट्स। And in this way you can complete third question of question number 6. Now moving to question number 7, and the part is which figure is formed by 3 non-collinear points. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज़रा ढंग से समझिए। 3 पॉइंट दिए गए हैं और 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मीन्स दे आर नॉट ऑन सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाने हैं तो चलो मैं यहाँ पे एक एक करके आइडियलिज्म बता देता हूँ। 2 पॉइंट्स तो शायद मैंने एक लाइन पे ले लिए, मुझे तीसरा पॉइंट कहीं और लेना होगा। सो आई एम गोइंग टू इंडिकेट दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, एंड एज पर देयर क्वेश्चन नाउ यू कैन से दैट ये अगर दोनों एक लाइन पे है तो ये कहीं अलग है। इन दोनों में से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगा तो सी अलग आ जाएगा, और AC में से कोई लाइन ड्रॉ करूँगा तो बी अलग आ जाएगा। इज द मीनिंग ऑफ 3 non-collinear points. Now question is which figure is formed by 3 non-collinear points. अगर इन तीनों non-collinear points को मैं ज्वाइन करता हूँ, means first I am joining A with B, now I am joining B with C, and then C with A. Naturally, if I am going to join 3 non-collinear points, then the diagram form is triangle. So therefore by joining of 3 non-collinear points, diagram form is a triangle. And in this way you can complete the first exercise. Now we are going to start
practice set 1.2. Now what is exactly question और फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ओवर हियर. स्टूडेंट एक बात याद रखिए, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था वो सारा रेफरेंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2. The following table shows point on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below of the table are congruent or not. यानी यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स के साथ उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एंड दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है और वेदर दैट डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है या सॉल्व करना है. एक एक करके पहला पार्ट है. दे हैव गिवन अ टेबल स्ट्रक्चर लाइक पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट. पॉइंट ए हैविंग अ कोऑर्डिनेट वैल्यू -3, पॉइंट बी हैविंग अ कोऑर्डिनेट वैल्यू 5, पॉइंट सी हैविंग अ कोऑर्डिनेट 2, पॉइंट डी हैविंग अ कोऑर्डिनेट -7 एंड ई हैविंग अ कोऑर्डिनेट 9. आपके हेल्पलाइन के लिए मैंने इसे और सिंपल किया है. मैंने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके सेंटर में है 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पॉजिटिव नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. निगेटिव नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग. उसमें से वही नंबर लिखे हैं जो उन्होंने दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल a इज -3, तो -3 का पॉइंट है a. b हैविंग अ कोऑर्डिनेट वैल्यू 5, यानी ये है b पॉइंट. c हैविंग अ कोऑर्डिनेट वैल्यू 2, सो c. d हैविंग अ वैल्यू -7, सो पॉइंट d हैविंग अ वैल्यू -7 एंड पॉइंट e हैविंग अ 9, सो पॉइंट e इज हैविंग अ 9. ये लाइन मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपको उसका पैटर्न समझ में आए. इन शॉर्ट, पॉजिटिव नंबर वैल्यू इज ग्रेटर, निगेटिव नंबर वैल्यू इज स्मॉलर एंड 0 इज एट सेंटर. और एक बात हमेशा याद रखिए, whenever we are going to find the distance between any two points, then you have to always make a subtraction between greater value minus smaller value. यानी हमें जो दो पॉइंट दिए गए हैं उस दो पॉइंट में ग्रेटर पॉइंट या ग्रेटर पॉइंट की वैल्यू कौन सी है या स्मॉलर पॉइंट की कौन सी वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए. मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर अ डिस्टेंस बिटवीन द सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी एंड वी हैव टू क्रॉस चेक वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो इन द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी डी के बीच का डिस्टेंस ए बी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो मैं कहूँगा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. अगर वो नहीं है तो नॉट अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. लाइक दैट वे. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट डी ई. सो योर फर्स्ट पार्ट इज, पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई ये पता ज़रूरी होना चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी का पॉइंट कोऑर्डिनेट है -7 एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ई, ई का कोऑर्डिनेट वैल्यू है 9. अब इस केस में मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि -7 और 9 में बड़ा कौन है. तो आपका पहला पार्ट आ जाएगा, डेफिनेटली 9 इज़ ग्रेटर देन -7. यानी अगर आपको डिस्टेंस डी ई ढूंढना है या सेगमेंट डी ई का डिस्टेंस ढूंढना है, then your first part, segment DE is equal to larger value minus smaller value, so 9 minus of -7. So here distance between 9 minus of -7. Simplification, it become 9 plus 7 and that value become 9 plus 7 15. यानी ये वैल्यू आ गई है 15 या 15 यूनिट्स. अब सेम पैटर्न मैं दूसरे सेगमेंट के लिए भी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. यानी मेरा सेगमेंट डी आ चुका है 15. इसी तरह मुझे एक डिस्टेंस ढूंढना है सेगमेंट ए बी. अब सेगमेंट ए बी में फिर से दो पॉइंट है ए एंड बी. बी हैविंग अ कोऑर्डिनेट 5 एंड ए हैविंग अ कोऑर्डिनेट -3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी. So coordinate of A is -3 and coordinate of B is 5. So coordinate of A is -3 and coordinate of B is 5. According to number theory, 5, which is a positive, is always greater than the number -3. So the first part, 5 is greater than -3. इसके कारण हम सेगमेंट AB का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं. So segment AB is equal to 5 minus of -3.
5 माइनस ऑफ -3, सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो वो आएगा 5 + 3, वाई माइनस ऑफ माइनस इज प्लस एंड 5 + 3 दैट बिकम 8। अब आपके पास सेगमेंट डी का डिस्टेंस वैल्यू है 15, इसे मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, और सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पॉइंट वैल्यू है जिसे मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। यानी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी ई इज 15 यूनिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज 8 यूनिट। नेचुरली 15 इज नॉट इक्वल टू 8, और यू कैन से सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट ए बी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू segment AB, and in this way you can complete the first numerical. स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए, हम हमेशा जब वैल्यू लेते हैं तो हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो उन्होंने दिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ये लाइन मैंने आपके सिर्फ हेल्पलाइन के लिए बना रखी है, अगर आप ये लाइन डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड विच इज़ द ग्रेटर वन एंड विच इज़ द स्मॉलर वन, क्योंकि हम हमेशा ग्रेटर पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर पॉइंट कोऑर्डिनेट ऐसा ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। यहाँ पे हमें फिर से सेगमेंट BC का डिस्टेंस ढूंढना होगा, AD का डिस्टेंस ढूंढना होगा विद द हेल्प ऑफ टेबल दे हैव गिवन, एंड द पार्ट इज हियर यू कैन सी coordinate of B and coordinate of C। अब coordinate of B वैल्यू है 5 एंड coordinate of C इसकी वैल्यू है 2। सो coordinate value of B is 5 and coordinate value of C is 2, and here simply we can say that 5 is greater than 2, 5 बड़ा है 2 से। सो therefore segment BC is equal to 5 minus in bracket 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखो ये 2 प्लस है, माइनस नहीं है। कुछ लोग जल्दबाजी में उसे भी -2 लगा देते हैं, आपको वही पॉइंट लेने हैं जो स्टेबल फॉर्मेट में दिए हैं, एंड 5 minus 2 दैट सिंपली बिकम 3। ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BC। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर I'm going to call or find out the distance of segment AD, जहाँ पे आपका A का वैल्यू है -3 और D का वैल्यू है -7। A का वैल्यू है -3 और D का वैल्यू है -7। So here segment AD, so coordinate of A and then coordinate of D, coordinate of A that is -3 and coordinate of D that is -7। यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन होता है, नंबर में देखा जाए तो 7 बड़ा होता है 3 से, लेकिन अगर लाइन डायग्राम में आप देखोगे तो -7 है लेफ्ट हैंड साइड पे या -3 है राइट हैंड साइड पे, तो -3 बड़ा हो जाता है, ये याद रखिए। सो योर फर्स्ट पार्ट -3 is greater than -7, then डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AD वो आ जाएगा -3 माइनस ऑफ -7। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस ऑफ माइनस +7 एंड +7 -3 दैट बिकम +4। आई एम टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका पहला वैल्यू आया है सेगमेंट BC, ये आ गया है 3, सेगमेंट AD ये आ चुका है 4। नेचुरली 3 इज नॉट इक्वल टू 4, और लॉजिकली हम लिखेंगे सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट AD। सो सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट AD, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट सेकंड न्यूमेरिकल। आप इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द पार्ट इज segment BE and segment AD. So the part is coordinate of B and coordinate of E. So coordinate of B
value is 5 and coordinate of E, that value is 9. अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है एंड नेचुरली 9 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर 9 is greater than 5. Therefore, segment BE in the form of distance is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, 9 minus 5, and 9 minus 5, simply it become 4. I'm going to call it as equation number 1. सेम मैनर से हम दूसरा इक्वेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस पार्ट। यहाँ पे हमें ढूंढना है सेगमेंट AD। पहले भी एक न्यूमेरिकल के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D। नाउ हियर कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -7 and coordinate of D is coordinate of A is -3 and coordinate of D is -7. Coordinate of D is -7. यहाँ पे फिर से स्टूडेंट याद रखिए -3 ग्रेटर है या -7 स्मॉलर है। सो -3 इज ग्रेटर देन -7। देयरफॉर सेगमेंट AD इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -7। सिंप्लीफिकेशन -3 माइनस ऑफ माइनस +7 and -3 + 7, that become 4. I'm going to call it as equation number 2. Now from both means equation 1 and equation 2, this distance is 4 and 4. Naturally we can say that segment BE equal to or congruent to segment AD. Therefore segment BE in terms of distance is equal to segment AD. And in this way we can complete third question. Now moving to the second question of practice set 1.2 and the part is, question क्या दिया है जरा स्टूडेंट ध्यान दो। Point M is the midpoint of segment AB. Point M is the midpoint of segment AB. AB equal to 8. Then find the length of AM. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Let us say this is the segment AB which is given by them, and as per their condition point M is the midpoint of segment AB. यानी ये क्वेश्चन मिड पॉइंट से रिलेटेड है, तो M is midpoint of segment AB means AM equal to BM. ये पार्ट इन शॉर्ट उन्होंने मेंशन किया है। If AB equal to 8 means distance from A to B, this distance is 8. Then find the length of AM. AM का लेंथ ढूंढने के लिए कहा है। स्टूडेंट ज्योमेट्री जब आप लिखते हो तो दो पार्ट होते हैं, एक आप डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर सकते हो, दो उसका लिखने का अपना एक पैटर्न है। फर्स्ट ऐड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो द पार्ट इज आंसर सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8। ये दिया गया है इसलिए इसे लिखा जाता है गिवन। सेकंड, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ये भी इन्होंने दिया है। सो पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ये भी दिया गया है इसलिए गिवन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस AM, यानी पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हो और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आंसर के स्टेप्स लिखना शुरू कर देते हो। सो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए रीजन में आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। नाउ AM इज हाफ ऑफ AB, AM इज डिस्टेंस AB से हाफ होगा, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हाफ ऑफ 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी ये आ जाएगा 4। यूनिट पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स, एंड दैट इज लेंथ ऑफ AM। एंड in this way you can complete this part.
स्टूडेंट कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ से भी आंसर स्टार्ट करते हैं, बट दिस आर द स्टेप्स, और आगे जाके इसे थ्योरम लिखने में हमें काफ़ी मदद होगी, इसलिए ये स्टेप्स अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पार्ट इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है देख लो। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, यानी आपको रफ डायग्राम व्यू में अगर देखा जाए तो एक सेगमेंट CD है जिसका P मिड पॉइंट है, मीन्स CP इक्वल टू DP, ये बताया गया है। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD इफ CP इक्वल टू 2.5, यानी हमें ये दिया गया है CP इज 2.5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, यानी हमें लेंथ CD ढूंढनी है। याद रखो स्टूडेंट, ऐसे छोटे मोटे डायग्राम आप अपने लिए ड्रॉ करते रहो, नो डाउट इट मे बी अकॉर्डिंग टू स्केल और नॉट, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको राइटिंग स्टाइल में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नाउ एज पर गिवन कंडीशन CD हमें ढूंढना है और हमें दिया है CP एज ए 2.5 एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी अगेन यहाँ पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। सो आंसर पार्ट इज P इज मिड पॉइंट ऑफ CD दिया गया है, इसलिए मैं लिखूंगा गिवन CP इज इक्वल टू 2.5 दिया गया, इसलिए फिर से आ जाएगा गिवन। यह आहिस्ता आहिस्ता हम लिखने की आदत लगाएंगे क्योंकि आगे जाके थ्योरम में हमें इसका फायदा होगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ CD और CD, आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो। CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल टू 2 times of CP, CP is 2.5 and 2 into 2.5 that become 5.0, or you can say 5 units, and that is the value of length CD. हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसे इस मेथड से सॉल्व करें, ये मेथड भी अप्रोप्रिएट है, या फिर अगर आपको मिड पॉइंट मेथड से लिखना है तो सिर्फ ये पार्ट लिखते समय आपके कुछ कंडीशन चेंज हो गए। व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगेन यहाँ पे याद रखो CP हमें पता है दैट इज 2.5, ये आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये 2 डिवाइडेड था इस साइड आके, ये 2 डिवाइडेड था इस साइड आके मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। सो 2.5 इंटू 2 is equal to CD, and again 2.5 into 2 means 5 and that is equal to length of CD, इसलिए CD इधर लिख रहा हूँ, length of CD is equal to 5 units। आप चाहो तो इस मेथड से लिख सकते हो या ये दो पार्ट लिख के आप इस स्टेप से लिख सकते हो, आप दोनों स्टेप्स मेथड से आप इसे लिख सकते हो, जस्ट कोई भी एक मेथड आप अडॉप्ट कर लीजिए। Now moving to question number 4 and the part is, if AB equal to 5 cm, AB equal to 5 cm, BP equal to 2 cm and AP equal to 3.4 cm, compare the segments। यहाँ पे स्टूडेंट हमें कंपैरिजन करना है in terms of a segment which is provided in the form of length। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है एक एक करके मैं पार्ट लिख रहा हूँ। सो आंसर इज AB equal to 5 cm, BP equal to 2 cm and third AP equal to 3.4 cm। ये तीनों पार्ट दिए गए हैं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं गिवन। अब वैल्यूएशन से हमें पता है 5 सेंटीमीटर इज द लार्जर इन लेंथ, 3.4 मिडल वन है एंड देन फाइनली 2 सेंटीमीटर। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट पार्ट, दैट शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम यू। अब ग्रेटर देन लिखना या लेस देन लिखना, ये टाइप आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर इट इज़ ग्रेटर देन 3.4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, यानी लेंथ वाइज में 5 सेंटीमीटर की लेंथ बड़ी होगी
कंपेयर टू 3.4 सेंटीमीटर, एंड 5 एंड 3.4 सेंटीमीटर ये दोनों ग्रेटर होगी 2 सेंटीमीटर के कंपेरेटिव. 5 सेंटीमीटर इट इज नथिंग बट AB, और यू कैन से सेगमेंट AB is greater than 3.4 means segment AP is greater than 2 centimeter means segment BP. And in this way you can represent a comparison of a segment. यहाँ पे यह पार्ट आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो. Now student, moving to question number 5, and the part is write the answer of following questions. Write the answer of following questions with the reference of figure. हमें एक फिगर दी गई है और फिगर के रेफरेंस से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं. जो पार्ट मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में लिखा है, बाद में 4 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा. यहाँ पे उन्होंने एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रखी है जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है TSRPQ, एंड नेचुरली ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन दिस रिस्पेक्टिव लाइन. आप इस लाइन को लाइन PQ, लाइन RQ, लाइन SQ या लाइन TQ जिस नाम से बुलाना चाहते हो बोल सकते हो, बिकॉज इट इज एंडलेस. एरो इज कंटेनिंग फ्रॉम बोथ द साइड. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे RP. राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे RP. अब जरा ध्यान दीजिए, रे RP है कहाँ पे? ये रहा R, ये रहा P. तो आपको चाहिए रे RP के अपोजिट. रे RP के अपोजिट आ सकता है आपका रे RS या रे RT. सो द फर्स्ट पार्ट, अपोजिट रे ऑफ RP इज रे RS और रे RT. सो राइटिंग द फर्स्ट आंसर ओवर हियर. क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ RP. अगर RP इस डायरेक्शन में जा रहा है तो RS या RT एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो अपोजिट ray of ray RP is ray RS and ray RT. In this way you can write the first answer. So ray RS and ray RT are the opposite ray of ray RP over here. Now their second question is write the intersection of ray PQ and ray RP. Once again question is write the intersection of ray PQ and ray RP. अब हमें लिखना है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब वो पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन या कंबाइन होता है. सो राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ. तो आपका रे PQ मतलब ये स्पेस होगा जो इस तरफ जा रहा है, एंड रे RP मतलब फिर से इसी डायरेक्शन में जा रहा है. और इन दोनों में अगर आप देख रहे हो तो कॉमन पोर्शन इस P पॉइंट से आगे Q और इसके एंड तरफ जा रहा है. तो P इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, Q इज द नेक्स्ट पॉइंट, एंड मूविंग इन वन डायरेक्शन मीन्स इट इज नथिंग बट रे PQ. तो रे PQ ये पार्ट ऐसा होगा जो रे PQ और रे RQ में एज अ कॉमन इंटरसेक्शन होगा. सो क्वेश्चन इज राइट द इंटरसेक्शन ऑफ. सो इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ and ray RP is ray PQ and this is the answer of second question. Now third question is write the union set of ray PQ and ray QR. Write the union set of ray PQ and ray QR. अब आपका रे PQ यानी ये पोर्शन हो जाएगा, एंड रे QR यानी आप इस साइड आ जाओगे. अब इन दोनों का इन्होंने पूछा है यूनियन. यूनियन मीन्स यू कैन से एडिशन ऑफ बोथ बट रिटर्न इन वंस. दोनों का पार्ट कंबाइन में यूनिट होना चाहिए. अब रे PQ इस साइड जा रहा है और रे QR इस साइड आ रहा है और हमें चाहिए इसका यूनियन. आप इसके लिए पूरी लाइन कंसिडर कर सकते हो और इस लाइन को आप अलग अलग नाम से बुला सकते हो. मीन्स आइदर यू कैन कॉल लाइन PQ और लाइन TQ. सो द पार्ट इज
So union of set of ray PQ and ray QR can be written as line PQ or line TQ is union set of ray PQ and ray QR, ray PQ and ray QR, and in this way you can represent the first three answer. Now moving to question number 4, and the part is state the rays of which sec QR is a subset. अब इन्होंने पूछा है sec QR, QR यानी इतना ही पोर्शन हुआ, and state the rays of which QR is a subset. Now QR is a subset of, you can say, ray QR or ray QS or ray QT. So sec QR is a subset of ray QR, ray QS, ray QT. वो तीनों का भी सबसेट हो जाएगा, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड द पार्ट इज राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. इनका कॉमन एंड पॉइंट आर होना चाहिए. आर पॉइंट ये है और हमें अपोजिट रे चाहिए, यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. सो यू कैन से रे आर पी एंड रे आर एस आर अपोजिट रेज विथ एंड पॉइंट आर. तो मैं पहला आंसर लिख रहा हूं, रे आर पी एंड रे आर एस आर अपोजिट रेज with common end point और आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, रे आर क्यू एंड रे आर टी आर अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. ये दूसरा भी आंसर है, इसलिए मैं इसे भी लिख देता हूं, रे आर क्यू एंड ray RT are opposite rays with common end point. और एंड इन दिस वे आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर सकते हो. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. पहले देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है. राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस. तो आपका एंड पॉइंट एस यहाँ पे है, और क्वेश्चन है राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, यानी इसका कॉमन एंड पॉइंट एस होना चाहिए. मैं एक इस साइड से ले रहा हूँ और एक इस साइड से, यानी रे एस टी एंड रे एस आर द टू रेज, rays ST and ray SR are two rays with common endpoint S, with common endpoint S. क्यों? क्योंकि रे ST और रे SR का एंड पॉइंट एस है और वो दोनों रेज में कॉमन है. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, एंड द पार्ट इज राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी. ये है रे एस पी, यानी इस साइड जाने वाला फ्रॉम एस पी एंड ऑनवर्ड, और ये है रे एस टी.
यानी एस टी इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों रेज में आप देखोगे तो इनका क्वेश्चन है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होने वाला कॉमन। यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट एस, जो इन दोनों में कॉमन है। सो द आंसर इज intersection set of ray SP and ray ST is point S। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर सकते हो। नाउ moving to question number 6 and the part is answer the question with the help of figure। इन्होंने यहाँ पे एक फिगर दी है जो क्वेश्चन नंबर 6 में है और उससे रिलेटेड उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ दे हैव गिवन अ डायग्राम इन टर्म्स ऑफ अ लाइन डायग्राम एंड दे हैव गिवन r एज अ -6, q -4, पॉइंट p हैविंग अ कोऑर्डिनेट -2, a हैविंग अ कोऑर्डिनेट 0, b हैविंग अ कोऑर्डिनेट 2, c हैविंग अ कोऑर्डिनेट 4 एंड d हैविंग अ कोऑर्डिनेट 6। देर आर ऑल्सो सम पॉइंट्स विच इज़ हैविंग मिसिंग कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे है v, अगर इस v को 4 और 6 के बीच का कोई पॉइंट है तो वो डेफिनेटली 5 होगा। इन द सेम वे यहाँ पे है l, वो p और q के बीच में है, मीन्स -2 और -4 के बीच में है, यानी ये आ जाएगा -3। या फिर यहाँ पे u दे रखा है, वो है -4 और -6 के बीच में, यानी होगा -5। एज पर रिक्वायरमेंट हम वो पॉइंट्स ले लेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। तो हमारा मेन बी पॉइंट यहाँ पे है, मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे है एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंस है, अगर मैं 2 डिस्टेंस यहाँ चला जाता हूँ तो 4 यानी पॉइंट आ जाएगा सी, और 2 डिस्टेंस बैकवर्ड आ जाता हूँ तो पॉइंट आ जाएगा ए। यानी C and A are equidistant from point B. So first answer is point C and point C and point A are equidistance from point B। और वो टू डिस्टेंस यूनिट पे है, तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ। दे आर एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। अब इसे मैंने नंबर 1 इसलिए दिया क्योंकि इसमें और भी एक आंसर हमें मिल रहा है और हम उसे लिखना शुरू करेंगे। सेम वे फ्रॉम पॉइंट बी 1 2 3 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और 2 से 1 2 3 4 ये भी इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स पॉइंट डी एंड पॉइंट पी। सो सेकंड आंसर इज point D and point P are equidistant from point B। They are at 4 unit distance। They are at 4 unit distance from point B। इस तरीके से आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। फिर से एक बार स्टूडेंट ध्यान दो, पॉइंट बी से 2 यूनिट पे है सी और 2 यूनिट पे है ए, इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। और सेकंड केस में एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट पे है डी
at a distance 4 unit पे है P. So point D and P. So in this way you can write the answer. Now moving to the second question from the same part, and the part is write a pair of points equidistant from point Q. स्टूडेंट ध्यान से देखो, आपका पॉइंट Q जिसका वैल्यू है -4 या कोऑर्डिनेट वैल्यू है -4 वो यहाँ पे है, एंड वी हैव टू राइट इक्विडिस्टेंस पॉइंट. तो यहाँ से यानी Q से इक्विडिस्टेंस है P और इसी Q से इक्विडिस्टेंस है R एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट. सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट आंसर ओवर हियर. पॉइंट P एंड पॉइंट R, पॉइंट P एंड पॉइंट R are equidistant point, are equidistant from point Q and they are at a distance 2 unit. तो उसी में ऐड कर देता हूँ from point Q and at 2 unit distance from point Q अब इस क्वेश्चन में और भी 2 पॉइंट है जो पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंस है. एक है L जिसका वैल्यू नहीं दिया गया है और दूसरा है U एट अ यूनिट 1 यूनिट फ्रॉम पॉइंट Q. वो भी आंसर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसलिए सेकंड आंसर इसका आएगा पॉइंट L एंड पॉइंट U. Point L and point U are equidistant from point Q at a unit and at 1 unit distance from Q. इस तरीके से आप सेकंड आंसर भी लिख सकते हो. ये पहले वाले आंसर जैसे टाइप में था. Q से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है P, Q से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है R. दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, पॉइंट P एंड पॉइंट R. सेकंड, फ्रॉम पॉइंट Q L एंड U इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंस. सो पॉइंट L एंड पॉइंट U आर ऑल्सो एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q. ये रहा हमारा सेकंड आंसर. नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर, एंड इन थर्ड क्वेश्चन दे हैव गिवन डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस ऑफ अ सेगमेंट. यू कैन से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन UV, डिस्टेंस PC, डिस्टेंस VB एंड डिस्टेंस UL. एक एक करके हम एक एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं और एक एक डिस्टेंस कंसिडर करके इवैल्यूएशन करते हैं. सो our फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस UV. A डिस्टेंस UV. पहले तो हमें U और V के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे U पॉइंट यहाँ पे है और V यहाँ पे है, लेकिन इसके वैल्यूज नहीं दिए गए हैं. नेचुरली 4 और 6 इन दोनों के बीच में V पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5. और यहाँ U पॉइंट है -4 और -6 के बीच में, यानी ये हो जाएगा -5. इन शॉर्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ V इज 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ U इज -5. Writing that part first over here. So coordinate of V, that is 5, and coordinate of U, that is -5. ये दोनों पॉइंट्स दिए नहीं गए थे, हमने लाइन डायग्राम के इवैल्यूएशन से कैलकुलेट या लिखे हैं. सो हमें ये डिस्टेंस UV चाहिए. देयरफॉर डिस्टेंस UV इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट वैल्यू बड़ा है या -5 छोटा है, मीन्स वी हैव वन पार्ट 5 इज ग्रेटर देन -5. अप्लाइंग दैट पार्ट फॉर डिस्टेंस UV, दैट बिकम लार्जर कोऑर्डिनेट मीन्स 5 माइनस ऑफ -5. सिंप्लीफाइंग इट, सो इट बिकम 5 + 5, क्योंकि माइनस ऑफ -5 मीन्स +5 एंड 5 + 5 that become 10 units, and this is the distance between the point UV.
एंड इन दिस वे वी आर कैलकुलेटेड आवर फर्स्ट आंसर। स्टूडेंट एक बार फिर से समझ लो, u और v में u का कोऑर्डिनेट वैल्यू -5 या v का कोऑर्डिनेट वैल्यू 5 ये दिया नहीं गया था, हमने लाइन डायग्राम के हिसाब से कैलकुलेट किया और फिर उसका यूज सॉल्यूशन के लिए किया गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट डिस्टेंस pc। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, डिस्टेंस pc। इस केस में भी हमें p और c के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए तो हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 4। सो राइटिंग दैट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ p is -2 and coordinate of C is 4। यहाँ पे भी 4 is greater than -2, तो मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ 4 is greater than -2। तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, इससे हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। Therefore डिस्टेंस PC is equal to 4 minus of -2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ माइनस मीन्स +2 एंड 4 + 2, देयरफॉर डिस्टेंस PC इज इक्वल टू 4 + 2 मीन्स 6 यूनिट्स। और इस तरीके से हमने डिस्टेंस PC कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस VB। सो थर्ड पार्ट, डिस्टेंस VB। यहाँ पे हमें फिर से V और B के कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे। V इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट 5 एंड B हैविंग अ कोऑर्डिनेट 2। सो राइटिंग दैट पार्ट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ V इज इक्वल टू 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू 2। 5 is greater than 2, so we are writing as 5 is greater than 2, distance VB is equal to larger coordinate minus smaller coordinate means 5 minus 2, and simply 5 minus 2 means it become 3 units, and this is nothing but distance VB. And in this way we have calculated third part. Now we are going to calculate fourth value यानी डिस्टेंस UL। मैं यहाँ पे पार्ट लिख रहा हूँ, फोर्थ डिस्टेंस UL। यहाँ पे हमें U और L के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ U एंड कोऑर्डिनेट ऑफ L। अब कोऑर्डिनेट ऑफ U है -5, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ L, यहाँ पे L का कोऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं है, वो है -2 और -4 के बीच में, यानी कंपलसरी वो होगा -3। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ L इज -3। इस तरीके से हमें U और L के कोऑर्डिनेट मिल गए। U का उन्होंने दे दिया था, L का हम लोगों ने ले लिया है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ओवर हियर, -5 और -3 में रिमेंबर स्टूडेंट -3 बड़ा है और -5 छोटा है। सो हियर -3 is greater than -5, therefore distance UL is equal to -3 minus -5। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते तो ये आएगा -3 माइनस ऑफ माइनस +5। नाउ हियर -3 + 5 -3 + 5 दैट बिकम 2, तो ये आ गया 2 एंड दैट इज डिस्टेंस UL इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। एंड इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स। स्टूडेंट लिखते समय सिस्टमैटिकली लिखो, प्रेजेंटेशन परफेक्ट करो एंड adopt the steps over here, and please compulsory draw the diagram whenever it is necessary.